ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ, ओल्ड स्कूल एजुकेशन ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਸਪੀਡ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਤੀ, ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਤੀ, ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੱਕ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਦਊਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਦੂਰੀ ਵਟਾ ਸਮਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਰ 'ਚ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, दूरी अपनी किलोमीटर ते मीटर च दित्ती होगी, जो टाइम अपना आर ते सैकेंड दे विच दित्ता होगा। हुण आपां की कहने, आपां कहने जे कोई गड्डी जा रही है, आपां कहने वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है। आपां कहने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है। मतलब की है भी जिहड़ी 50 किलोमीटर की दूरी है ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 60 ਗੁਣਾ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ 60 ਗੁਣਾ 60 ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਪਰ 1000 ਆ ਜਾਣਾ, ਨੀਚੇ 60 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3600 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ 5, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 18 ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 5/18 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5/18 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 5/18 ਜਾਂ 18/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਓ। ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ 72 ਨੂੰ 5/18 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 18 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 72 ਕਿੰਨੀ ਦਾ? 4 ਤੇ 5 का 20, ਤਾਂ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ 15 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 15 ਗੁਣਾ 18/5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 3, 18 ਤੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 54, ਤਾਂ 54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਦੀ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਦੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਦੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ।
क्योंकि उसने बी तो बाद जी अपनी स्पीड थी वो बदल ली, चेंज कर ली थी, ठीक है। पर आप दसना भी ए तो लेके सी तक उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, ठीक है। देखो आप किते जाने किते कोई अलग रास्ता आ जाता, मान लो किसी पिंड तो होके जा रहा, किसी शहर तो होके जा रहा, किसी भीड़ वाले रास्ते तो होके जा रहा, तो अपनी स्पीड जी होंगी बदलती रहती है। पर आप जब आप टोटल स्पीड कड्ढनी होंगी तो उसको की कहने आप एवरेज स्पीड करते हैं भी आप किसी जगह तो दूजी जगह ते कितनी स्पीड नाल गए, ठीक है। वो की होंगी एवरेज स्पीड होंगी है। तो एवरेज स्पीड की होगी अपनी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल दूरी ते टोटल समा किन्ना टोटल आप दूरी तय की ए तो लेके सी तक अपनी किन्नी टोटल दूरी थी ते किन्ना टोटल टाइम लग गया, ठीक है। तो टोटल दूरी किन्नी थी, अपनी टोटल दूरी किन्नी थी 50 किलोमीटर। तो आप जी एवरेज स्पीड कड्ढीए तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आ 30 किलोमीटर आ, टोटल डिस्टेंस आप कितना तय किया 50 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी तय की 50 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगे 7 ते 3 10, ठीक है 10 घंटे। तो अपने को कितना आ जाऊगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल आप जा रही थी, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही थी, ये आ गई अपनी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। तो एक होर एग्जाम्पल ले लेंगे, मान लो ए तो लेके आप सी तक जा रहे हैं, ठीक है। ए तो लेके सी तक जा रहे हैं, बिच बी ते आपने की कर लिया स्पीड बदल ली थी। ए तो लेके बी तक जो अपना 50 किलोमीटर है वो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है। बी तो लेके सी तक जो अपना 100 किलोमीटर है वो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हैं। हूँ मैंने दसो कि एवरेज स्पीड की होगी, ठीक है। इस की दे रखी है, इस टाइम दे रखी है, इस की दे रखी है अपन ये दे रखी है अपन स्पीड। पहला स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की थी, बाद चो स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर की थी। एवरेज स्पीड आप दसनी है। देखो इसमें की करांगे, अपन को फार्मूला होंगे एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो अपन पता है 50 ते 100 150 हो गया, लेकिन टोटल टाइम कितना होगा। देखो स्पीड की होंगी, स्पीड होंगी अपनी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर ले जाने तो टाइम की होगा अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस पहला डिस्टेंस कितना थी 50 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी 10 दी, प्लस अपना डिस्टेंस कितना थी 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर दी। तेन कट देने ये कट जू होना 5 ते ये कट जू अपना किन्ने से कट जू 5 ते, तो 150 5 ते 5 10, तो अपनी कितनी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर की अपनी स्पीड थी, ठीक है। ये बेसिक जो कॉन्सैप्ट थी एवरेज स्पीड का, ये तुहानू समझ आ गया होगा। अगे बढ़ ओके। एक एवरेज स्पीड का एक होर कॉन्सैप्ट है जो कि आप यूज करते हैं जो आप जल्दी कढ़ना हो। यह कॉन्सैप्ट उदों यूज करना है जब जो अपना डिस्टेंस है वो दोनों केसेस के बराबर हो। मान लो ए तो लेके आप सी तक जाना है, तो ए तो लेके बी की जी दूरी है वो मान लो एक्स है, तो बी तो लेके जी सी की दूरी है वो भी एक्स है। मतलब ए तो बी तो बी तो सी की ए तो बी तो बी तो सी की जी दूरी है वो की है बराबर है, जो डिस्टेंस है वो बराबर है। उदों आप फार्मूला यूज करना। देखो उस टाइम जो आप एवरेज स्पीड कढ़नी हो किमें कढ़ांगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स की है अपना, मान लो ए तो लेके आप पहला बी तक गए, आप एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड ना गए, फिर आप बी तो लेके सी तक गए, आप वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड ना गए। जो डिस्टेंस थी मान लो आ भी डी थी, दोनों डिस्टेंस बराबर थी, तो आप एवरेज स्पीड कढ़नी हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये आप कदों यूज किया है जब अपनी दो अपने को स्पीड दे रखी ने, पहला ए तो बी तक स्पीड थी, फिर बी तो लेके सी तक थी। जे आपू सी तो लेके डी तक मतलब डिस्टेंस सेम है, सी तो लेके डी तक दे रखी है, तो आप मान लें Z किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो इस टाइम भी आप एवरेज स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप कर सकते हैं एवरेज स्पीड कढ़ सकते हैं। उसका की फार्मूला होता है याद रख लियो, 3XYZ XY प्लस YZ प्लस ZX, ठीक है। इस टाइम भी आप कर सकते हैं अपनी एवरेज स्पीड कढ़ सकते हैं, औसत गति कढ़ सकते हैं, ठीक है। अगे बढ़ते हैं। ओके हुण आप देखते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सैप्ट। देखो रिलेटिव स्पीड ते मोस्ट इंपोर्टेंट अपना टॉपिक हो गया,
क्योंकि रिलेटिव स्पीड के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन्हें भी एग्जाम तुम देखे होंगे टाइम एंड डिस्टेंस का देखो क्वेश्चन तो आंदा ही आता है, वो किते आता और रिलेटिव स्पीड से आता है। जिहदे की होंगे मान लो एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इस वाल आ रही है, ठीक है, दस पूछा जाता कदों मिलणगियां, ਜਾਂ एक चोर इधर ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜੂਗਾ, ठीक है, ਜਾਂ ट्रेन एक ट्रेन दूजी ट्रेन दोनों सेम डायरैक्शन 'ਚ जा रही ने, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अपन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन अपने किहदे विच आंदे ने, अपने रिलेटिव स्पीड दे विच आंदे ने। इस दे विच कुछ गल्लां ने जिहड़ियां तुहानूं पता होनी चाहिए ने। देखो पहली गल तुहानूं ये पता होनी चाहिए है भी मान लो ए पॉइंट है, कोई ए पॉइंट तो अपनी की जा रही है ट्रेन जा रही है, तो जी दूजी ट्रेन है वो बी पॉइंट तो ए पॉइंट वाल नूं आ रही है, ठीक है, बी पॉइंट तो ए पॉइंट वाल आ रही है। जी ए पॉइंट तो चली है उसकी जी स्पीड है कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। जी बी पॉइंट तो चली है उसकी स्पीड की है वाई किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जो एक दूजे वाल आ रही ने तो हमेशा याद रखियो उन्होंने स्पीड की हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो टोटल जी स्पीड की होगी, टोटल जी स्पीड होगी वो कितनी होगी अपनी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। क्योंकि एक दूजे वाल आ रही ने, एक दूजे वाल आ रही ने, मान लो किसी पॉइंट तो उन्होंने पहुंचना है तो जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि एक दूजे वाल आ रही ने, ये भी वो वाल पहुंचने की कोशिश कर रही है, भी वो वाल पहुंचने की कोशिश कर रही है, एक दूजे वाल जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। मान लो ए पॉइंट तो ट्रेन जी हैगी है वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल ईस्ट वाल नूं जा रही है, एक ट्रेन जी हैगी है वो बी पॉइंट तो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल वो भी ईस्ट वाल जा रही है। दोनों की जी डायरैक्शन है वो सेम है, तो इस दे विच जी रिलेटिव स्पीड होगी वो की होगी अपनी, जो अपनी रिलेटिव स्पीड होगी वो की हो जाएगी एक्स माइनस वाई, ठीक है। मान लो एक्स की थी, एक्स की स्पीड की थी ज़्यादा थी वाई नालों, तो आप की लवेंगे एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ताकि हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। याद रखियो जो उन्होंने सेम डायरैक्शन है तो माइनस हो जाएगा, जे अपोजिट डायरैक्शन है जी एक दूजे वाल आ रही है तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यह रिलेटिव स्पीड का कॉन्सैप्ट दीगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ा मैं तुहानूं होर समझा देना जो कि आप रेशो के विच यूज करते हैं, क्विकली समझा देना क्योंकि आप हुण क्वेश्चन भी करने। देखो जे आपां नूं डिस्टेंस जिहड़ा है कॉन्सटेंट दे रखा, जिहड़ा अपना डिस्टेंस है जी अपनी दूरी है वो कॉन्सटेंट है, वो बराबर है, ऐ मान लो, ताकि होगा S1 T1 जो पहले की स्पीड तो पहले का टाइम होगा वो बराबर होगा दूजे की स्पीड तो दूजे के टाइम के, ठीक है। जे इको जी दूरी तय करते हैं, मान लो दो ट्रेनों ने सेम दूरी तय कर दी है, तो पहली ट्रेन की जी स्पीड है तो पहली ट्रेन जिन्ना टाइम लगाती है वो बराबर होगा दूजी ट्रेन की स्पीड तो दूजी ट्रेन जिन्ना टाइम लगाती है, ठीक है। तो स्पीड की जी रेशो है मान लो एक्स रेशो वाई है, तो टाइम की जी रेशो होगी वो अपोजिट हो जाएगी, मतलब 1/x रेशो 1/y, तो आप की लिख सकते हैं y रेशो x हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम की रेशो की हो जाएगी y रेशो x हो जाएगी। जो स्पीड की रेशो x रेशो y है तो टाइम की रेशो y रेशो x हो जाएगी। इस क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तुहानूं वधिया समझ लग जाऊगा, ठीक है। एक कदों यूज करना आप जो डिस्टेंस जिहड़ा है कॉन्सटेंट है, ठीक है। तो स्पीड की रेशो तो टाइम की रेशो की होगी अपोजिट होगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब एक्स वाई का वाई एक्स बन जाऊगा, ठीक है। याद रखियो जे अपने कोल स्पीड कॉन्सटेंट है, स्पीड कॉन्सटेंट है मतलब इको स्पीड नाल जा रही ने, स्पीड कॉन्सटेंट अपना, तो D1 डिवाइड T1 इज इक्वल टू D2 डिवाइड T आ जाऊगा, मतलब किन्ना उन्हें डिस्टेंस तय किया किन्ने टाइम दे विच पहली ट्रेन ने इज इक्वल टू किन्ना डिस्टेंस तय किया दूजी ट्रेन ने किन्ने टाइम दे विच बराबर हो जाऊगा। तो टाइम की की रेशो बनूगी अपने को एक्स रेशो वाई बनूगी, तो डिस्टेंस की जी रेशो बनूगी वो भी अपनी एक्स रेशो वाई बनूगी, मतलब बराबर होगी। जी टाइम की रेशो होगी वही अपनी डिस्टेंस की रेशो होगी जब अपना स्पीड कॉन्सटेंट होगी। देखो तीजा जब अपना टाइम कॉन्स्टेंट होगा, टाइम कॉन्स्टेंट होगा, जब अपना टाइम कॉन्स्टेंट होगा तो D1/S1 इज इक्वल टू D2/S2। जी पहली ट्रेन ने किन्ना डिस्टेंस किन्ने स्पीड नाल तय किया, दूजी ट्रेन ने किन्ना डिस्टेंस किन्नी स्पीड नाल तय किया, जब टाइम दोनों ने इक्को जा लगाया बराबर लगाया, तो जी स्पीड की जी रेशो होगी मान लो वो कि अपनी एक्स रेशो वाई है, तो जी अपनी डिस्टेंस की रेशो होगी वो भी अपनी एक्स रेशो वाई होगी, तो डिस्टेंस तो स्पीड की जी रेशो है वो बराबर होगी,
ठीक है, याद रखना है। बस ऐ याद रखिए जो डिस्टेंस कॉन्सटेंट होगा उदों बस अपोजिट होगी। बाकी केस दे विच जे स्पीड कॉन्सटेंट है या टाइम कॉन्सटेंट है, जी रेशो है टाइम डिस्टेंस की या स्पीड डिस्टेंस की वो बराबर होगी। ये तुसीं याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है। इस नाल ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन ਦੇ बहुत ही ईजी तरीके ਨਾਲ हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ कॉन्सैप्ट है तुसीं याद रखना है। ओके, ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवाने वाला एक मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला जो कि बहुत स्टूडेंट ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ, और डिफिकल्ट तरीके ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਥੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ याद रख लियो जे डिस्टेंस सेम है तो फार्मूला याद रख लियो, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2, डिफरेंस इन स्पीड मल्टीप्लाई डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। मान लो ए पॉइंट तो बी पॉइंट ते किसी गड्डी ने जाना है, पहला गड्डी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गई, बाद चो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गई, ठीक है। पहला मान लो टाइम लगा लिया उन्हें जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गई, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गई। मान लो पहला उसने लगाते 10 मिनट लगा लो, तो बाद चो जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गई उन्हें 5 मिनट लगाते। उस टाइम अपनों डिस्टेंस पूछा जाए तो आप फार्मूला लगावे। तो पहला स्पीड कितनी थी 10 थी, बाद चो स्पीड कितनी थी 20 थी, ठीक है। चेंज इन स्पीड 20 तो 10 का डिफरेंस ले लेंगे उरे 10, तो टाइम का स्पीड डिफरेंस उरे 10 मिनट का, उरे 5 मिनट का, ठीक है। तो अपने 10 तो 5 गए अपने कितने आ जाएंगे 5, ठीक है। तो मिनट के आर के चेंज कर लेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप सोल्व कर लें, ठीक है। तो कितना जो अपना 10/6 किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल ली थी, नहीं थोड़ा एग्जैक्टली कट जाता, ये एग्जाम्पल ली थी। तो इस तरीके का आ फार्मूला जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इस नाल ही थोड़े अद्धे क्वेश्चन जो आएंगे, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन आएंगे मैं तुहानूं दिखाऊंगा भी किस तरीके तुम ये फार्मूला यूज कर सकते हो। अगे बढ़ते हैं। ओके, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ मेन ਜਿਹੜਾ अपना पार्ट जो शुरू हो गया, क्वेश्चन अपने शुरू हो गए, ਹੁਣ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ईजी क्वेश्चन आएंगे, थोड़े ਜਿਹੇ मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। हार्ड क्वेश्चन आप ज़्यादा पाए नहीं है, ईजी तो मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कईयों को मॉडरेट जो क्वेश्चन ने वो हार्ड लग जाए, या कईयों को ईजी क्वेश्चन मॉडरेट लग जाए, ठीक है। तो जो पंजाबी मीडियम ने उन्होंने मैं पंजाबी के बना के दस दूंगा कि इसनों किवें आपां सोल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन की कहता है, कहते अ परसन, एक आदमी क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट। एक आदमी एक सड़क तय करता है 600 मीटर की, मान लो सड़क थी वो 5 मिनट के तय कर लेंदा है। 5 मिनट के 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट के तय कर लेंदा है। आपां स्पीड दसनी है, उसकी स्पीड दसनी आपां किलोमीटर पर आवर दे विच, स्पीड दसनी आपां किलोमीटर पर आवर दे विच। आपां नूं डिस्टेंस दे रखिया है 600 मीटर, ते टाइम आपां नूं दे रखिया है 5 मिनट, ठीक है। तो आपां की कड्ढना, किलोमीटर पर आवर च कड्ढना है। देखो स्पीड की हुंदा अपना, स्पीड की हुंदा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना अपना 600 मीटर, टाइम कितना अपना 5 मिनट। पहला मिनट नूं आपां की करांगे सैकेंड दे विच चेंज कर लांगे, सैकेंड दे विच चेंज करने वास्ते 60 नाल गुणा कर देंगे। तो यह की आ गया अपना मीटर पर सैकेंड दे विच आ गया। हुण तुहानूं पता लग गया मीटर पर सैकेंड दे विच क्यों करें, क्योंकि मीटर पर सैकेंड नूं आपां कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर दे विच 18/5 नाल गुणा करके, ठीक है। तो अपने कोल की आ गया हुण मीटर पर सैकेंड दे विच आ गया। पहले इहनूं सोल्व कर लेने आ, ये कट जो अपना 10 ते 5 दे पढ़ ते 2, तो कितना स्पीड कितनी आ गई अपने कोल 2 मीटर पर सैकेंड। हुण ये मीटर पर सैकेंड नूं आपां 18/5 नाल गुणा कर देंगे, ठीक है। 18 दूना कितना हुंदा अपना 36/5, 7 5 35, ठीक है, 5 दूनी 10, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड आ जाएगी। तो 7.2 किलोमीटर पर अपनी किलोमीटर पर आवर दे विच आंसर आ जाएगा, ठीक है। हुण तुहानूं पता लग गया कि क्यों मैं तुहानूं करवाया थी मीटर पर सैकेंड नूं किलोमीटर पर आवर दे विच किवें चेंज करीदा, ठीक है। अगे बढ़ते हैं। ओके, सैकेंड क्वेश्चन कहते एक जहाज कवर करता डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 घंटे, ठीक है। कोई एरोप्लेन है कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2/3 आवर इट मस्ट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ। देखो वो कहते
ਕਹਿੰਦੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ए ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ बी ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਹੀ 2/3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਹੀ 2/3, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 3, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 5/3। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 5/3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 240 ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਤਾਂ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ 240 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਰੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 80 ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 80 ਹੁੰਦਾ 80 ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਉਸਨੇ ਵਧਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਸਪੀਡ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰੀ ਵਧਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਯੂਜ਼ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਵਾਕ ਐਟ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ he would have walked 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ more, the actual distance traveled by him is। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਊਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਪੀਡ ਉਸਨੇ ਵਧਾ ਲਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਲਈ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 20/4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 20 ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੂਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਵੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਧਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਜੂਗਾ, 5 ਚੋਂ 20 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ठीक है, कोई आप फार्मूला नहीं यूज करिया, आप सिर्फ रिलेशन फाइंड किया कि जे डिस्टेंस जिन्ना वधिया जिन्नी स्पीड उसकी वधी तो उस हिसाब नाल कितना डिस्टेंस उसका वध गया। आगे जाने ओके, अगला क्वेश्चन कहते एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, मतलब जो स्टॉपेज जे गड्डी जी रुक के जा रही थी, मान लो स्टॉपेज थी जेडे अपने जिन्होंने आप छड़ दिए, द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज, जे आप स्टॉपेज मिला लिए तो इट इज 45 किलोमीटर। जे तो देखो स्टॉपेज है नहीं जे, ठीक है, कितने भी वो रुक के नहीं जा रही तो वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है बस, ठीक है। जो रुक रुक के जा रही है, स्टॉपेज है ने रास्ते विच तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है, ठीक है। हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। क्योंकि आप एक घंटे के करना आप दसना कि एक घंटे के कितना रुकी थी, देखो एक घंटे के पहले 54 किलोमीटर जा रही थी, उस तो बाद जब स्टॉपेज आ गए तो एक घंटे के 45 किलोमीटर जा रही है, तो एक घंटे के कितना रुक रही है, 9 किलोमीटर की जी दूरी थी उस टाइम जिन्ना वो रुक रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पहले की जा रही थी 45, मतलब 54, ओरिजिनल कितना अपना 54, तो पहले कितना जा रही थी 54 किलोमीटर जा रही थी किन्ने टाइम दे विच, एक घंटे दे विच, एक घंटे नूं कह सकते हैं 60 मिनट कह सकते हैं। पहले 54 किलोमीटर 60 मिनट दे विच जा रही थी, जे उन्हें 1 किलोमीटर जाना होवे तो कितना टाइम लगूगा, 60/54 मिनट लगणगे। जे उसने 9 किलोमीटर दूरी तय करनी होवे तो कितना टाइम लगूगा, 60/54 गुणा 9, क्योंकि जिन्ना टाइम 9 किलोमीटर का फर्क तां पिया क्योंकि उसने स्टॉपेज आ गए, जिन्ना टाइम वो रुकी उन्ने टाइम दे विच वो 9 किलोमीटर वध जा सकती थी, ठीक है। तो 9 किलोमीटर से जो टाइम लग्या वो टाइम उसने किते लगाता, स्टॉपेज से लगाता। जो आप 9 किलोमीटर चलने का टाइम कढ़ लिया, इसका मतलब आप स्टॉपेज का टाइम कढ़ लिया, तो मैं की कर रहा 1 किलोमीटर का टाइम कितना आ गया, देखो 54 किलोमीटर वो 60 मिनट के चाहती है, क्योंकि आप की कह रहे हैं 54 किलोमीटर पर आवर, तो एक घंटे के 54 किलोमीटर जाती है, तो 54 किलोमीटर 60 मिनट के जाती है, 1 किलोमीटर 60/54 मिनट जा रही है, तो 9 किलोमीटर कितने जाऊगी, 60/54 गुणा 9। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 9 6 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 54 ਹੁੰਦਾ, 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 10, ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੋਪੇਜ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਮੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਜਰਨੀ ਇਨ 10 ਆवर, he travel first half of the journey at the rate of 21 kilometer per hour, second half at the rate of 24 kilometer per hour, find the total journey in kilometer। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਟੋਟਲ ਜਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੀ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਿਆ, 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਿਆ, 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਿਆ, ठीक है। टोटल जो टाइम थी उन्हें कितना लगाता, 10 घंटे लगाता, ठीक है, 10 आवर लगाते। आप दसना ए तो लेके सी की जी डिस्टेंस है वो आप दसना, ए तो लेके सी की जी दूरी है वो आप दसना, ठीक है। हम इनू किवें करांगे, देखो सब तो पहला की करांगे, देखो डिस्टेंस जो इन्ना डिस्टेंस है ए तो लेके बी का डिस्टेंस है, उन्ना ही बी तो सी का डिस्टेंस है, तां करके आप की कढ़ सकते हैं, इस एक फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का। तो आप एवरेज स्पीड कढ़ लेंगे भी वो ए तो लेके सी तक किन्नी स्पीड नाल आपां गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला की सीगा, देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला उदों ही लगाना है जब डिस्टेंस जो बराबर है दोनों केसेस के विच, ए तो लेके बी तक, बी तो लेके सी तक डिस्टेंस जो बराबर है। तो फार्मूला की थी अपना 2 × x × y डिवाइड x + y। तो x की अपनी पहला स्पीड कितनी अपनी 21, बाद चो स्पीड कितनी अपनी 24, फिर दोनों का जोड़ 21 ते 24 कितने होंगे ने अपने 45, ठीक है। हुण आपां बस इहनूं कट्टना है,
किमें कट्टी है 3 ਦੇ पहाड़े ते कट्टी है 7 या 21 3 ते पहाड़े ते 15 3 ਦੇ पहाड़े ते 8 या 24 3 ਦੇ पहाड़े ते 5 तीए 15 और तो नहीं कुछ कट रहा ना कट नहीं गया 8 7 कितना होंगे 8 7 56 देखो अपन मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं क्योंकि बाद चो कटना पऊगा तो अपन यही लिख लें 2 गुणा 7 गुणा 8 डिवाइड दे विच 5 ठीक है क्योंकि अगे अपन यूज करांगे आप की कटना है आप डिस्टेंस कटना है तो स्पीड की होंगी है स्पीड होंगी अपनी डिस्टेंस अपॉन दे विच टाइम ठीक है अपनी गति की होंगी है दूरी बटा समा तो आप की कटना अपनी दूरी कटनी है डिस्टेंस कटना है तो डिस्टेंस की होगा अपना टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाऊगा स्पीड गुणा दे विच टाइम ठीक है तो स्पीड कितनी अपनी स्पीड आप कट ली 2 गुणा 7 गुणा 8 डिवाइड दे विच 5 तो टाइम कितना लगा रहा हो 10 घंटे लगा रहा देखो 10 घंटे लगाई थी टोटल जर्नी वास्ते गुणा 10 एक कट जो अपना 2 ते ठीक है तो यह मल्टीप्लाई 8 7 56 56 4 ਨਾਲ गुणा करांगे तो कितना हो जाएगा अपने को 224 किलोमीटर अपना टोटल डिस्टेंस थी तो 224 अपना आंसर आ जाएगा ठीक है तो आप केड़ा फार्मूला लगाया उरे एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा के आप स्पीड कर ली उस तो बाद एक बेसिक या डिस्टेंस का फार्मूला लगाया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाता बस 2 फार्मूले यूज करके आप आंसर कटता ठीक है अगले क्वेश्चन के बाद हो गया अगला क्वेश्चन कहते अ मैन ऑन टू ट्रैवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ अ टूर इज एक बंदा ਜਿਹੜਾ 160 किलोमीटर की दूरी सी उसने 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल तय की अगली जी 160 किलोमीटर की दूरी थी जी अगली 160 किलोमीटर की दूरी थी वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल तय की आपां की पूछा कि आप औसत स्पीड दसनी औसत गति दसनी आप एवरेज स्पीड दसनी आप 320 किलोमीटर की हुण ही मैं तुहानूं करवा के दसिया कि जी एवरेज स्पीड कड्ढनी हुंदी है एवरेज स्पीड कड्ढनी हुंदी है आप उसका फार्मूला यूज कर सकते हैं जेकर डिस्टेंस जिहड़ा दी बराबर थी ये दोनों केसेस डिस्टेंस बराबर है तो आपको डिस्टेंस की इतने जरूरत नहीं पऊगी आप सीधा इसनूं यूज करके आप कढ़ सकते हैं तो एवरेज स्पीड की होनी है 2 इंटू एक्स इंटू वाई भाग दे विच एक्स प्लस वाई ठीक है 2 गुणा एक्स की मतलब पहली स्पीड कितनी अपनी 64 है दूजी स्पीड कितनी अपनी 80 है तो 64 से 80 64 कर देंगे प्लस 80 कर देंगे क्योंकि पहली स्पीड से दूजी स्पीड का जोड़ कर देंगे तो अपने को आ जाऊगा उरे 2 गुणा 64 गुणा 80 तो 64 के 80 जोड़ 144 ठीक है हम आप एवरेज स्पीड कट लेंगे 2 के पहाड़े कट दें आप 2 के पहाड़े कट्टा कि आ जाऊगा अपने को आ जाऊगा अपने को 72 ठीक है 8 के पहाड़े से 80 8 10 80 8 9 72 ठीक है और कुछ नहीं कट रहा 660/9 ठीक है अपने को आ गई एवरेज स्पीड कितनी आ गई अपने को एवरेज स्पीड आ गई अपने को 660/9 पर अपन की करना अगे पॉइंट च करना ठीक है यदा आंसर आ जाएगा 9 7 63 1 9 1 9 फिर 1 0 ले लेंगे फिर 9 1 9 फिर 1 9 1 9 तो 71.11 किलोमीटर पर आवर अपना सी अपना आंसर आ जाएगा 71.11 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाएगा ठीक है अगे बढ़े इस तो बाद आप की लगा था एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाता क्योंकि अपन की दिखा जो डिस्टेंस की जी दूरी थी वो बराबर थी ठीक है हमें याद रखें जो दूरी बराबर है तो डायरेक्टली फार्मूला लगा दिया करो इसनूं दूजे तरीके नाल लेंथी तरीके नाल सोल्व कराया जा सकता थी पर आप उमें नहीं करना ठीक है हो गया अगला क्वेश्चन कहते इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अवे टेक 2 आवर मोर देन समीर इफ अवे डबल है स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लैस देन समीर अवे स्पीड इज कहते 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है अवे की करता 2 घंटे ज्यादा लेंदा किदे नालों समीर नालों अवे 2 घंटे ज्यादा लेंदा 30 किलोमीटर की दूरी तय करन नूं किदे नालों समीर नालों कहना जी अवे अपनी दूरी जे अपनी जी स्पीड है वो की करता डबल कर दे पहला जितनी स्पीड थी उस नाल दुगनी कर दे दैन ही वुड टेक 1 आवर लैस पहला की ले रहा जी 2 घंटे ज्यादा ले रहा जी हुण 1 घंटा घट लऊगा जी अपनी स्पीड बढ़ा दे ठीक है तो दसो अवे की स्पीड कितनी थी हुण आपां इहनूं किवें करांगे देखो इजी तरीके नाल करूंगा मैं फार्मूला यूज करूंगा सुन मैं फार्मूला दस्सिया सी स्पीड सॉरी की फार्मूला दस्सिया सी डिस्टेंस
इज इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है तो गुणा के दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज करते हैं। देखो डिस्टेंस कितना दे रही है अपन डिस्टेंस 30 किलोमीटर। ठीक है, अब टेक 2 आवर मोर। ठीक है, अब मान लो उरे दीगा पहला वो की कर रहा थी 2 घंटे ज्यादा ले रहा थी। ठीक है, इफ जेकर अपनी स्पीड जी दुगनी कर दिंदा दैन ही वुड टेक 1 आवर लैस तो फिर की करता पहला नालों 1 घंटा लैस लेंदा। ठीक है, पहला उरे थीगा हुण कित्थे उरे आ गया, पहला 2 घंटे ज्यादा ले रहा थी हुण 1 घंटा घट ले रहा तो फर्क किन्ने दा पै गया 3 घंटे का फर्क पै गया। ठीक है, तो डिफरेंस जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना आ गया अपने को 3 घंटे आ गया। ठीक है, जो स्पीड वो डबल कर लेंदा पहला स्पीड कितनी थी एक्स थी बाद चो स्पीड कितनी होगी 2x होगी। ठीक है, स्पीड जी स्पीड थी वो डबल होगी कि अवे दी। ठीक है, जिदे करके की होंदा वो पहला नालों की करदा 3 घंटे का फर्क पै गया, पहला 2 घंटे ज्यादा लेंदा सी हुण 1 घंटा घट लेंदा 3 घंटे का फर्क पै गया। हुण ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितना अपना 30 किलोमीटर, स्पीड 1 कितनी अपनी x, दूजी स्पीड कितनी अपनी 2x। ठीक है, स्पीड के फर्क कितने का आ रहा है 2x के x घटा दो 2x के जो आप x घटा दिए तो कितनी आऊगी x तो डिवाइड बाय x। ठीक है, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 घंटे तो 3 घंटे तो x ना x कट जूगा 3 के पहाड़े आप कट देंगे 10 से। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने 10/2 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई अपने को 5 किलोमीटर पर आवर तो मेरी स्पीड कितनी आ गई अपने को 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जे तुम इसमें दूजे तरीके कढ़न लग जाते तो बहुत लेंथी बन जाता। चल दूजे तरीके दस देना ज़्यादा लेंथी नहीं बनता क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ी ईजी है, दूजे तरीके भी दस दें। ठीक है, ठीक है, मान लो कि अबे की जी स्पीड थी अबे की जी स्पीड थी वो कितनी थी x किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो स्पीड की होंगी अपनी स्पीड होंगी अपनी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर आ जाऊगा तो टाइम की होंगे अपना डिस्टेंस डिवाइड च स्पीड दूरी भाग दे विच गति समा अपना आ जाऊगा। ठीक है, देखो पहला टाइम कितना लगा रहा थी वो 30 किलोमीटर जाने वास्ते मान लो x स्पीड नाल जा रहा थी। ठीक है, बाद चो कितना जा रहा था 30 किलोमीटर तय करने वास्ते दुगनी स्पीड तो दोनों के किन्ने टाइम का फर्क पै गया, पहला 2 घंटे ज्यादा ले रही थी 1 घंटा घट ले रहा है 3 घंटे का फर्क पै गया। यही अपने को होनी इक्वेशन बन गई। एलसीएम ले लो अपने आ जाएगा 2x इधर आ जाएगा अपने 60 इधर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 3 60 जो 30 गए 30। ठीक है, डिवाइड 2x इज इक्वल टू 3 ये कट जो अपना 15 से 3 के पढ़ देगा 5 तो 5 ये x उधर चला जाऊगा x तो x कितना आ गया अपने को 5 किलोमीटर पर आवर। आवेरी स्पीड कितनी आ गई अपने को 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके भी काट सकते जी। हो गया अगला क्वेश्चन, कहते रोबोट इज ट्रैवलिंग ऑन ए साइकिल एंड हैज कैलकुलेट टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM इफ ही ट्रैवल एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जे रोबोट की जी स्पीड है वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जाता है तो अपनी मंजिल से 2 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो अपनी मंजिल से मतलब पॉइंट ए ते 2 बजे पहुंच जाता है। जेकर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता है, जे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता है तो अपनी मंजिल से 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे पहुंचता है। कहते एट वट स्पीड मस्ट ही ट्रैवल टू रीच ए एट 1 PM जे वो 1 बजे पहुंचना चाहे जे 1 बजे पहुंचना चाहे तो अपनी कितनी स्पीड वो रखूगा। ये अपने पूछा कि दसो उसकी कितनी स्पीड होगी जो उसने 1 बजे पहुंचना। देखो इस आप किमें करांगे, पहले तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 डिफरेंस इन स्पीड एंड डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, पहला स्पीड कितनी थी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर बाद चो कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर। किन्ने का फर्क आ गया दोनों के 10 15 चो 10 घटाए 5 का। टाइम का कितना फर्क आ गया देखो 2 घंटे का 12 तो 2 किन्ने 2 घंटे का फर्क आ गया। 15 के पहाड़े कटांगे आप 2 ते। ठीक है, 15 चौके 60 मतलब डिस्टेंस कितना अपना 60 किलोमीटर का। ठीक है, तो यदा मतलब की है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम हुंदा, गति की हुंदी अपनी दूरी बटा समा हुंदा। तो स्पीड आप कढ लांगे उरों, स्पीड तो दस्सी हुई है, टाइम कढ लांगे आप। स्पीड कितनी दी अपनी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आप कढ ही लिया 60 किलोमीटर, टाइम उरों कढ लांगे तो टाइम कितना आ गया अपना 6 घंटे। ਇਹਦਾ मतलब 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ पहुंच रहा थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल तो वो किन्ने घंटे लगाए थे, उसने 6 घंटे लगाए थे। इसका मतलब की है कि वो 8 ਵਜੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, कि वो 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ 9 10 11 12 1 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ है, ਇਹਦਾ मतलब 8 ਵਜੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ 8 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 10 11 12 1 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ठीक है, आप स्पीड कढ़नी थी 60 किलोमीटर, किन्ने घंटे च पहुंचना आप 5 घंटे में, 12 5 60 तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल आपां नूं चलना पऊगा। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। हो गया अगला क्वेश्चन, कहते इट टेक 8 आवर फॉर 600 किलोमीटर जर्नी, उन्होंने 8 घंटे लग जाते हैं जे वो 600 किलोमीटर की जर्नी मतलब 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको 8 घंटे लगते हैं। कहते इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन, ये 120 किलोमीटर जोड़े ने वो ट्रेन नाल तय किए जाते हैं, एंड रेस्ट बाय कार, तो उस तो बाद जो बच गए 600 जो 120 घटाए तो 480 कि कार नाल। ठीक है जी, कहते इट टेक 20 मीटर मोर, पहला किन्ने ले 8 घंटे ले रहा थी, हुण किन्ने ले रहा 8 घंटे 20 मिनट ले रहा, कहते 20 मिनट ज़्यादा ले रहा। कहते जे 200 किलोमीटर डन बाय ट्रेन, 600 किलोमीटर दे विचों 200 किलोमीटर जे हुण ट्रेन नाल करदा ते बाकी किन्ने 400 किलोमीटर कार नाल करदा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार, ते स्पीड ते ट्रेन दी जिहड़ी स्पीड ते ट्रेन ते कार दी जिहड़ी स्पीड दी रेशियो है वो आपां दस्सणी है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ कार जिहड़ी रेशियो है वो आपां दस्सणी है। ये अपना क्वेश्चन है। देखो इसनूं किवें करांगे आपां, देखो इसनूं करन वास्ते तुहानूं मैं तरीका दसदा, थोड़ा लेंथी तरीका है, पेशेंस रखियो पर लेंथी है, पर इस नाल आपां कर सकदे हां। देखो स्पीड की हुंदी आपां, स्पीड की हुंदी अपनी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे अपन टाइम का सारा खेड है। पहला 8 घंटे लगे थे, 8 घंटे 20 मिनट बाद चो ज़्यादा लग रहे हैं, तो टाइम आप टाइम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इधर चला जाऊगा, स्पीड थले आ जाऊगी, टाइम की हो जाऊगा अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, पहला टाइम कितना लग गया, पहला डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपना टाइम होंगे, तो डिस्टेंस कितना थी पहला 120 किलोमीटर, स्पीड ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड मान लो, ट्रेन की स्पीड मान लो कितनी है x किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी x। ठीक है, एक ही होगा अपना टाइम, तो दूजी बार कितना टाइम लग्या प्लस दूजी बार कितना डिस्टेंस तय किया 120 के विचों 600 के विचों 120 माइनस करते 480 का जी दूरी थी उसने मान लो y किलोमीटर पर आवर, तो कार की स्पीड मान लो कितनी थी y किलोमीटर पर आवर, तो y किलोमीटर पर आवर, तो टोटल टाइम पहला जिन्ना टाइम दूजा जिन्ना टाइम, क्योंकि टाइम का फार्मूला है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहला जिन्ना टाइम दूजा जिन्ना टाइम, तो टोटल कितने घंटे लगे 8 घंटे लगे। ठीक है, पहले केस दे विच, दूजे केस दे विच की करदे आपां, दूजे केस दे विच 200 जिहड़ी 200 का डिस्टेंस सीगा उसने 200 किलोमीटर का दूरी दी वो ट्रेन नाल तय की, ते जिहड़ी बाकी 400 किलोमीटर की दूरी दी वो कार नाल तय की। कितना टाइम लग गया उसनूं 8 घंटे लग गए प्लस 20 मिनट ज़्यादा लग गए, तो मिनट नूं आपां घंटे चेंज करने वास्ते डिवाइड बाय 60 कर लांगे, ये कट जो अपने 1/3 तो 1/3 आ जू, तो 8 या 24 24 एक 25 तो 25/3। ठीक है, 8 घंटे 20 मिनट में आप घंटे चेंज करके की लिखता 25/3 लिखता। हुण आप की करांगे, देखो ये एक्स ते वाई की वैल्यू कड्डांगे, किवें कड्डांगे, पहला तो आप 400 ते 400 कितना लिखा आप 480, 400 ते 480 का एलसीएम कढ लांगे, 400 ते 480 का एलसीएम कितना आंदा अपने कोल 2400, तो 2400 बनावांगे आप, क्योंकि 2400 उरे बना लिया 2400 उरे बना लिया तो कट देंगे, तो 2400 बनाने वास्ते आप की करांगे किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, इत्थे आप मल्टीप्लाई करांगे 5 नाल, ऊपर 5 नाल नीचे 6 चौका 24। ठीक है, ऊपर 5 नाल सारी इक्वेशन आप की करांगे 5 नाल गुणा कर देंगे, नीचे सारी इक्वेशन आप 6 नाल गुणा कर देंगे।
क्यों करांगे, क्योंकि 2400 बन जू, ये भी 2400 बन जू, दोनों 2400 बन जाएंगे, कट जाएंगे। तो 5 ਨਾਲ 12 5 60, 600 डिवाइड एक्स प्लस 2400 डिवाइड वाई, 8 5 40, नीचे 6 ना करेंगे, 6 दूनी 1200 डिवाइड एक्स, 6 चौका 2400 डिवाइड वाई, तो ये कट जूगा 2 ते 25 दूना 50। ठीक है, हूँ देखो आ भी 2400 बटे वाई, आ भी 2400 बटे वाई, हूँ इनू माइनस कर देंगे। ठीक है, ये अपना मान लो पहली अपनी जी दूजी इक्वेशन है वो पहली घटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे वड्डी है, तो ये माइनस हो जू, ये माइनस हो जू, ये माइनस हो जूगा। ठीक है, ये माइनस कितने तक कितना जूगा 600 बटे एक्स, ये कट ही जाना है। ये माइनस करते कितना बचना अपने को 10, 0 ਨਾਲ 0 कट जानी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 60 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 60 आ गई। हूँ किसी भी पुट कर दो, ये पुट कर दें तो वाई की वैल्यू आ जूगी, एक्स की वैल्यू की पुट करनी है 60 पुट करनी है, तो 120 डिवाइड 60 प्लस 480 डिवाइड वाई इज इक्वल टू 8। ये कटने कट जू 2 ते 2 इधर जाके माइनस हो जूगा, 8 चो 2 गए कितना जूगा अपने को 6। ठीक है, ये कट जू 80 ते, तो वाई की वैल्यू कितनी है 80। ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी 60, वाई की वैल्यू होगी 80। एक्स की अपने को ट्रेन की स्पीड, वाई की अपने को कार की स्पीड, तो अपने की करेंगे 60 रेशो 80 कटना दी 0 0 3 रेशो 4 3 रेशो 4 अपना आंसर है। ठीक है, इसमें एक तरीके ਨਾਲ कर सकते हैं, एक होर तरीका भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ इज इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 डिफरेंस इन स्पीड डिफरेंस इन टाइम। आ फार्मूला यूज होगा, 2 इक्वेशन बननियां, दोनों सोल्व कर लो, मिनट च निकल जूगा। ठीक है, बहुत ईजी तरीके कर सकते हो, जो तुम आपके तरीके करना चाहते हो आपके तरीके कर दो। इसका आंसर लिखो, मैनू कमेंट बॉक्स आंसर लिखो, तो जिसका आंसर मैनू लग्या कि सही आ रहा मैं उन्होंने हार्ट दे दूंगा, लाइक कर दूंगा। ठीक है, हार्ट दे दूंगा, तुम समझ नहीं हो भी जिन्होंने हार्ट दिता उसका आंसर सही है। ठीक है, बाकी जो तुहानू नहीं समझ आया, थोड़े तो नहीं निकल रहा, या आंसर पता लग गया पर निकल नहीं रहा, किवें निकलूगा, तो कमेंट कर दियो। ठीक है, अगला जी वीडियो आऊगी उसके पहले ही क्वेश्चन आप करवा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा होमवर्क है, जो नहीं निकलिया तो अगली वीडियो के सब तो पहला शुरुआत आप इस क्वेश्चन सोल्व करके करवावांगे। ठीक है, तो अगे बढ़ते हैं। ओके, इतने अपनी ये वीडियो खत्म होंगी है, तो हुण तुहानू कुछ रिक्वेस्ट है, जो तुमने चैनल सबसक्राइब नहीं किया, ठीक है, चैनल सबसक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने वास्ते मेहनत लगती है। ठीक है, फ्री दी वीडियो बना रहे हैं आप, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं ले रहे, फ्री दी वीडियोज़ ने, तो जो वीडियो पसंद आ रही है तो ही लाइक करो। ठीक है, तो अपना कमेंट करो, जो भी मैं तुहानू क्वेश्चन दिता उसको कमेंट करो, तो अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा लोग अपने जुड़ सकन। ठीक है, तो सबसक्राइब करो, जो तुम नवे हो, पहली बार जुड़ रहे हो, या पहला देख चुके हो फिर भी सबसक्राइब नहीं कर रहे, तो सबसक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिला के नवे टेस्ट के नाल, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच।